Welcome to the world of exploration. Welcome to the world of learning. Let's start exploring. Let's start learning. This is your very own educator, teacher, friend, philosopher, guide, mentor, preacher, one and all. And this is the one stop destination wherein we all are gonna grow together and we're all gonna learn together, right? सो ये एक स्थान है जहाँ पे हम ग्रो करेंगे साथ में और जहाँ पे हम कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब अच्छे से विशेष रूप से हम विषयों पे बात कर पाएंगे, खूब सारे मुद्दे उठा पाएंगे और खूब सारे मुद्दों पे बातें कर पाएंगे. All right, now coming to my background. See, I have done my master's in English, so I have my English background. So, but listen to me very carefully. That I have three options for you guys. So I will be taking classes. I would be uploading the material in English, in Hindi, and in bilingual language if you want. Like I can teach you in bilingual language. Obviously I can't upload any material for bilingual, like in English, the so-called English that you have, right? So but obviously I would be guiding you, I would be your mentor throughout your journey. So if you guys see, this is my channel and this is the DP of my channel. So over here you get to see that how Krishan Ji is basically acting as the leader, and it's not only because he is possessing that leadership quality in him, right? He's acting as a guide, he's acting as a mentor, he's acting as a philosopher and a preacher too, right? And he's guiding Arjuna on which path to tread and how to overcome his fears or any sort of phobia, and how to keep himself calm and relaxed in the face of storms. So यहाँ पे कृष्ण जी गाइड करते हैं अर्जुन जी को कि कैसे वो यहाँ पे वो एक्ट करते हैं. एक तरह से आपके टीचर गुरु हो गए, जैसे मेंटर हो गए, आपको कोई गाइड करने के लिए हो गया, आपको कोई प्रीचर यानी कि सर्मन्स जैसे कि आप अच्छे से एडवाइस देते हैं, एक तरह से एडवाइस यू कैन कॉल इट एजेंट हो गए. सो यहाँ पे वो गाइड कर रहे हैं अच्छे से, और आप देख सकते हैं कैसे अर्जुन उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं. सो ही इज़ एक्चुअली giving instructions of how you should be calm and even in the worst situations. It's not only the battlefield that we get to see in the war kind of situation, the war kind of situation and the battlefield that we get to see. No, and the bloodshed and everything. Obviously it's delineating that. Obviously वो उस बारे में भी बात कर रहा है कि कैसे वॉर होता है, कैसे वार करे जाते हैं और कैसे धरती को खराब डिस्ट्रॉय करा जाता है, कैसे दुश्मनी होती है कंट्रीज़ के बीच में. ऑब्वियसली ये बात तो है, लेकिन अगर आप डीप जाएंगे, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, सो वी गो डीप, right? So we dive deep into the recesses, into the nuances, and we have several kind of interpretations, and we look it from different angles. So हम different angles, different जगहों से हम देखते हैं, and हम बहुत अंदर घुस के so basically आप देखेंगे, मैं आपको इंग्लिश के माध्यम से पढ़ाऊँगी वो तो है ही, मतलब अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ाऊँगी वो तो है ही, लेकिन हिंदी के माध्यम से भी पढ़ाऊँगी, ठीक है? आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपको जो सूट करे, आप उस माध्यम को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, whether it be English or Hindi or English,
you can let me know in the comment section below, right? In the YouTube channel or in the Telegram channel. So I have created this Telegram channel on like yesterday. So yeah, I don't remember the date. I guess today it's 22nd. So I created this anyways. Yeah, yeah. So on 21st of June, obviously we do have yoga, International Yoga Day, right? So yoga is again हम if we talk about अगर हम बात करें योगा की, तो योगा तो हिंदुस्तान का यानी कि इंडिया का यानी कि भारत का देन है ना। तो भारत भी जैसे आप देखते हैं भारत से आया है और बहुत सारे और इंटरप्रिटेशंस हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण जी जो हैं ये आप अगर डीपी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई नीचे क्यों बैठे हुए हैं आजकल की जनरेशन को, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट टुडेज जनरेशन। बट आप अगर विजडम पाना चाहते हैं, अगर आप इंटेलेक्चुअल होना चाहते हैं, यू विल हैव टू लिसन टू योर एल्डर्स, यू विल हैव टू लिसन टू अ मोर knowledgeable person, and it could be it's not only about somebody who is big or knowledgeable, or obviously you have to listen to that person, but apart from that, if even even a small child, even a small kid, even a small insect, even a small spider can teach you a lot of things. So just see, observe around yourself. So आप अपने अराउंड ऑब्जर्व करिए, आप अपने अराउंड देखिए। आप एक कीड़े मकोड़े छोटे जो उनको आप सोचते हैं, उनसे भी आप कितना कुछ सीख सकते हैं। आप एक चींटी से आप कितना कुछ सीख सकते हैं, आप एक स्पाइडर से कितना कुछ सीख सकते हैं, एंट से ऑब्वियसली कितना कुछ सीख सकते हैं। आप एक छोटे बच्चे से कितना कुछ सीख सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज में हो या क्रॉल करता हुआ हो, या whether he's crawling or she's crawling or they're walking, you can, or if they are starting to speak, you can learn a lot, so there are different directions from which you can learn actually, right? So बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं और बहुत सारे वेज होते हैं जिससे आप लर्न कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं चीज़ें, है ना। तो ये मेरे 2 ग्रुप्स हैं, ये मैंने कल क्रिएट करा था 6:14 यानी कि 6:14 PM पे ये मैंने 2 ग्रुप्स क्रिएट करे थे, ठीक है। ये आप टाइप करेंगे @UPSC सिविल सर्विसेज SJ, आपको मेरा मिल जाएगा। नहीं तो आपको मैं आप ये स्कैन कर लेंगे ना, तो आपको ब्लू वाला करते हैं, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। सो अगर आप ये स्कैन करेंगे तो आपको ये स्कैन आपके पास स्कैनर होगा, राइट। तो आप इसको स्कैन करेंगे, आप you would be directed towards your Telegram channel. So आप Telegram channel पे डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप Telegram channel पे पहुंच जाएंगे, जिससे कि आपको मेरे सारा पता चलता रहेगा। तो मेरा जैसा है, जस्ट अ सेकेंड, अभी आप देख सकते हैं मैंने ये शेयर किया था क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे था। तो अब योगा के बारे में बात करते हैं, है ना, वार्तालाप करते हैं। अब योगा के बारे में बातचीत करूं मैं या ये वार्तालाप करूं, तो इंडिया हैज़ अ वेरी वेरी रिच हेरिटेज, राइट। इंडिया के पास बहुत रिच हेरिटेज है। सो इंडिया हैज़ अ वास्ट कल्चर, वास्ट हेरिटेज, एंड a variety of food items, and it has a beautiful tradition, culture, food, be it people, be it the kind of system that we had, be it the dance, whether it be Bharatanatyam, whether it be
Kathak or Kathakali or Odissi or any sort of dance, because we have dances, different dances, dance performances in different parts of India. And because India is all about mixture of, or potpourri you can say, of different cultures and traditions, and therefore India is so lively, and therefore people get jealous and they just feel like destroying or doing something like destroying and corrupting people. So इसीलिए लोग jealous होते हैं, they get they're they get jealous, they're envious of our rich heritage. And because we were the golden bird as well, so, and we have such beautiful intricate value system. We were famous for our values, for our traditions, for our customs, for our ethics, for our morals, for our for everything, right? For each and every aspect. And yoga is something that we have gifted to the world. Even our dance forms and our singing, when it comes to singing as well. So singing is also a crucial part of it, right? Food is a major part of it. Tradition, culture, architecture. If I talk about architecture of temples, fab architecture, and if I talk about the Mughal period, therein again the way Indians, the Hindus had built the monuments, whether it be Taj Mahal, whether it be any other monument of theirs, that was crafted and that was built in a beautiful way by Hindus, by Indians, right? And one more thing that I would like to talk about over here is that मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी कि आर्किटेक्चर हमारा बहुत अच्छा है, हमारा फूड बहुत अच्छा है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, हमारे ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं, हमारे लोगों के अंदर वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम है, मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, और हमारा पहले तो बहुत ही अच्छी कंट्री थी. हमारे में जेलसी नहीं थी एक दूसरे के लिए, हम बहुत हारमनी में रहते थे. सो वी यूज्ड टू लिव इन हारमनी, राइट? एंड वी वर हारमोनियस पीपल. We were very very soft and sweet people, and therefore people, in the invaders, whether it be Portuguese or it would be Mughals or French people or the colonizers, Britain, Britishers, and everyone else from the West, they tried to dominate, they tried to come and colonize India because India had everything. So India में सब कुछ था, तो इसलिए सब लोग सारे, चाहे पोर्चुगीज़. और मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अपर कास्ट, जैसे अब हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लाना चाहती हूँ कि ये जो सिस्टम था, जो लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये सब चीज़ें, जो SC ST, ये सब जो चीज़ें थी, ये सब पहले कि ये छुए ना, ये अनटचेबिलिटी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है, ये पोर्चुगीज़ वगैरह लाए थे कि लोअर कास्ट क्या होता है और अपर कास्ट क्या होता है. सो जब हम बोलते हैं Brahmin is the one. Everybody was allotted according to their profession, right? And this system wasn't made by Indians. Let me tell you, this was introduced by Portuguese in order to divide India, ताकि वो divide कर सकें Indians को तोड़ना कैसे था, ऐसे ही तो तोड़ना था, सिस्टम बना के. एंड सिस्टम बनाने के बाद, सिस्टम तो बना लिया, इंडियंस ने फिर भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करा. उन्होंने ब्राह्मण्स को, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन. सो ब्राह्मण्स होंगे वो जो पढ़े लिखे होंगे, जो who would be interested, like nowadays you have the system of streams, right? Selecting streams, so you can select either science or arts or commerce. So if you select commerce, you can become a CA. If you select humanities, you can become an IAS officer. If you select science, you can become a doctor or an engineer, right? And nowadays AI professionals and everything, they are also coming up. So
pattern keeps on changing. So nowadays also hierarchy is there, bosses are there, in schools also you have teachers, you have you have PRTs, you have PRRTs, then you have PRTs, then you have TGTs, then you have PGTs, then you have HOD, then you have vice principal, then you have principal, then you have chairperson, you know so hierarchy has been there since time, since ancient times, and it's still prevalent, but nobody questions that. But जब हम बात करते हैं SC ST OBC वगैरह का बेनिफिट्स देने की, मैं ये नहीं कह रही हूँ बेनिफिट्स ना दे, जो रियल में जो रियल में डिज़र्व करते हैं उनको बेनिफिट्स ज़रूर मिलने चाहिए, लेकिन जो करप्शन एक पार्ट है जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं एज इंडियंस। मैंने बहुतों को देखा है कि इंडियंस बहुत करप्ट हो जाते हैं। क्यों करप्ट हम कह रहे हैं, मतलब मैं कह रही हूँ, हम कह रहे हैं, मतलब क्योंकि वो अपना EWS में गलत सर्टिफिकेट दिखाएंगे, SC ST OBC में गलत सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जबकि वो बहुत रिच होते हैं, दे आर वेरी वेल्दी, एंड उनके लिए एज रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट की ये गलती है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मैं इस चीज़ से I mean I don't believe in this thing, so मैं इस चीज़ से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ। और वो चीज़ क्या है कि एज रिलैक्सेशन, अब एज रिलैक्सेशन जो है या कोई भी एजुकेशन स्कीम है, ठीक है, एजुकेशन कोचिंग है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एजुकेशन कोचिंग। सो वो लोअर कास्ट को या somebody who's earning below 8 lakhs उनको या 7 lakhs उनको मिलेगी फ्री में, बट बाकियों को नहीं। बट वी हैव, तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन कहाँ गया हमारा? RTI, आई नो इट्स स्टिल 6 to 14 years, बट कहाँ गया हमारा राइट टू एजुकेशन? एजुकेशन शुड बी meant for all. Whenever we have spoken about education, we have always been talking about, जब भी हमने बात करी है एजुकेशन के बारे में, हम हमेशा बातचीत यही करते हैं कि एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए सबके लिए। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट हाउ एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल to everyone, but nobody is has ever raised a question that education SC ST OBC के लिए है, तो जनरल कैटेगरी को क्यों तुम डिवाइड कर रहे हो? एजुकेशन तो एजुकेशन है, एज तो एज है, वो भी उतने ही बड़े होंगे उतने ही टाइम स्पैन में, हम भी उतने ही बड़े होंगे उतने ही टाइम स्पैन में। सो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी एंड हिपोक्रेसी उनमें छुपी हुई है। सो आई जस्ट डोंट लाइक द हिपोक्रेसी, एंड आई डोंट वांट कि मैं जो भी मेरे अंडर हों, लाइक मेरे अंडर कोई नहीं होगा, वी ऑल विल बी टुगेदर, बट यू हैव टू टेक गाइडेंस। सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स कि पोर्चुगीज़ ने करा या इंडियंस ने करा या किसने क्या, कब किसने क्या इन्वेड करा और क्या नहीं करा, ठीक है। अभी मैं आपके लिए स्पेशली 4 to 5 आपके लिए मैं लेक्चर मैंने 2-3 क्रिएट करे थे, लेकिन वो मेरे हुए नहीं रिकॉर्ड, अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क एरर था, टेक्निकल ग्लिच था, सो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है मेरे लैपटॉप में। सो आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई सेल फोन, बट या डेफिनेटली मेरे को ये सब चीज़ें लगती हैं एंड हमें इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क अपॉन करना होगा डेफिनेटली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो जिनके पास हर एक के पास ही पैसे हर एक को चाहिए होते हैं, हर एक को कमाने होते हैं। मैं मिलियनेयर्स की तो बात कर नहीं रही हूँ, या मिडिल क्लास की भी कोई बात करे, मैं ये चाहती हूँ। मिडिल क्लास को बीच में सैंडविच करके क्यों रख दिया है? Because I belong to, honestly speaking, I belong to a general class, a general category, and I'm a Brahmin. So, काफ़ी बार ऐसा होता है कि because of being, first and foremost, if
you consult any institution, or if you go in for any coaching or they will ask you, I have witnessed that whether you are a Brahmin or you're, which category do you belong to. So ये मुझे ऐसा लगता है जब, क्योंकि because I am a literature student, I've done my masters in English, so yeah, I can say that when Spivak was talking about and when we talk about Dalit literature, forget about that. When we talk about, अगर हम दलित लिटरेचर की बात करते हैं तो दलित राइटर्स ने सब कुछ लिखा कि कैसे ऑपरेशन और सप्रेशन हुआ उनका, तो अब ब्राह्मण्स का और सप्रेशन और ऑपरेशन, और हमें ये बात उठानी चाहिए, ये मुद्दा उठाना चाहिए कि कैसे एज रिलैक्सेशन हर एक के लिए करो यार। मैं ये नहीं कह रही कि उनके लिए मत करो, मैं ये कह रही हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए, ब्राह्मण्स के लिए क्यों नहीं एज रिलैक्सेशन है। यूपीएससी हो या सीटेट हो या यूजीसी नेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए इतना कम उम्र क्यों रखी गई है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि 27 तक 27 उम्र होनी चाहिए। अभी बीच में कोविड आया था, अभी दोबारा से कोविड ने दस्तक दी है, 2 वेव्स कोविड के हो चुके हैं, 2-3 वेव्स हो चुके हैं, और अभी भी दोबारा कोविड ने दस्तक दी थी, और अभी पता नहीं कि विश्व में क्या 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 होगा। अभी ईरान इज़राइल का वॉर हो रहा है, पहले पैलेस्टीन का वॉर हो रहा था, अभी ईरान इज़राइल का हो रहा है, रशिया यूक्रेन का होते होते पता नहीं कितने 3 साल हो गए हैं, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स और ये सब क्रिएट करा गया है, ताकि हम जितने भी नेशंस हैं, चाहे वो टेक इट कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई भी हो, बांग्लादेश हो, मिडल ईस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मिडल ईस्ट ताकि ग्रो ना कर सके, ताकि अच्छा ना परफॉर्म कर सके, इसलिए आपस में भिड़वाए जा रहे हैं, एंड दे हैव रियली ट्राइड really hard to break Russia, like it was a part of it was earlier known as USSR, right? So रशिया को हटवाया, रशिया को तोड़ने की पूरी कोशिश करी, रशिया यूक्रेन में वॉर तब से चल रहा है, एंड इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह से कश्मीर में इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने हमारे नाम पूछ के मारे थे। ये क्या सही है? इसके बारे में क्यों नहीं कोई बोलता, इसके बारे में कोई क्यों नहीं मुद्दा खड़ा करता? गलत बात है ये, और ये उनको भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं। अल्लाह जी कभी नहीं चाहेंगे, मैं तो हर भगवान में विश्वास रखती हूँ, मैं हर रिलीजन में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मैंने बिकॉज आई एम एन एजुकेटर, एंड मैंने हर ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, मैंने हर जगह पढ़ाया है, और मैंने हर जगह की वैल्यूज़ इम्बाइब करी हैं, और मुझे पक्का है कि ना कभी गुरु नानक देव जी चाहेंगे कि खालिस्तान बने, ना कभी अल्लाह जी चाहेंगे कि, कभी नहीं चाहते वो कि कभी अलग भी होता है पाकिस्तान या कोई भी,